بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا او محمد مدینے میں موجود ہے او محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر رہی ہے عباد صبا جھوم کر رہی ہے عباد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا او محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب طیب
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کی ذات پاک ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کے طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. چہارم کلمہ توحید. توحید معنی اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجم کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. تبت انه وتبرأت من الغفر والشرك والمعاصي كلها. اسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ بچی بھی مولانا ابو شمع صاحب کی طرف سے انعام قبول کریں. جی. اس کے بعد ارحان بڑوتی. یہ بچے بھی آ جائیں. اللہ چھوٹی سی عمر میں یہ بچے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. لہٰذا اس بچے کو حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو محمدیہ کمیٹی کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، اس کو قبول کریں. بچے لے ہو. اسی طرح آپ کے سامنے نعت رسول پڑھنے کے لیے نورانی پبلک اسکول کی ایک طالبہ طہورہ منا قاضی، میں اس بچی سے درخواست کرتا ہوں کہ بچے آئیں. طہورہ، یہ نعت آپ کے سامنے پڑھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ توفیق دے، یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں گی. یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، جیسا تو چاہتا ہے اللہ ویسا مجھے بنا، اللہ ویسا مجھے بنا، اس کے حلال کماؤں میں. یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں. یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، صبح سویرے اٹھ کے اللہ پڑھوں نماز میں تیری. اے رب میری اب تو کر دے قسمت اچھی میری. صبح سویرے اٹھ کے اللہ پڑھوں نماز میں تیری. اے رب میری اب تو کر دے قسمت اچھی میری. پڑھ اپنے نبھاؤں گی. یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں گی. یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، آنکھوں میں ندامت خالی چھولی، اللہ عرضی سن لے. توبہ کے در کھول لے اللہ، اب تو میری سن لے. گناہ اپنے بخشاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں گی. یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، کیسر کو بھی یا اللہ اب تیرا بلاوا آئے. کعبے کی میں کروں زیارت، دل میرا چاہے اسی مہینے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں گی. یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں میں. یا اللہ توفیق دے، یا اللہ توفیق دے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. محفل میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا.
बदले गा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। मुसलमानों मत घबराओ अभी खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों मत घबराओ अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है। न तात पर न तकवा पर न जोदो इत्तका पर है। न तात पर न तकवा पर न जोदो इत्तका पर है। मेरा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आइए आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में उनकी शान में चंद आशार नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने जा रहा हूँ। अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिअन तसल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी 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 चमन की दिल का चमन चमन की दिल का शेरों की है वो ताजगी है चांद जिन अब नमी कहे शाह की रोशनी हवाओं की हवाओं की वो रागिनी फिजाओं की वो नगमगी फिजाओं की वो नगमगी कितना प्यारा नाम भी नबी 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 मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। वो आमदे बहार है वो नूर की कतार है। वो आमदे बहार है वो नूर की कतार है। फिजा भी खुशगवार है हवा भी मुश्किबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता। हवा पुकारती चली नबी 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 मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाए। जमी बनी जबा बने मके बने मका बने वजह कुन चुनी बने चुना बने वजह कुन फिका बने। जमी बनी जमा बने मके बने मका बने चुनी बने चुना बने वजह कुन फिका बने। कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना। कहा ये मैंने खुदा ये किसी के सदक़े में बना। तो रब ने भी सदा यही नबी 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 सलाम। माशा 26 करोड़ 40 लाख नेकियां मिलती। कितने करोड़ बोलो कितने? 26 करोड़ 40 लाख नेकियां मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसे दूसरों को भी ज़रा समझाओ और अल्लाह ताला हम सबको खामोशी के साथ अजान सुनने की और अजान का सही जवाब देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, दुनिया में सबसे पहला घर बैतुल्ला है जो सारी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। उस बैतुल्ला को इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर जब बनाया, बनाने के बाद जब उसके फिनिशिंग का वक्त आया, वो
जो वो जमाने में गच वगैरह होता था, तब बालू वगैरह नहीं, गच कंकर ये थी, चोनी के इससे वो बना। तो खुलासा ये है, जब अल्लाह का पूरा घर कंप्लीट हुआ, वो जो वेस्ट मटेरियल जितना नीचे पड़ा था, वो सब वेस्ट मटेरियल अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए से जमा कराया, सब जमा हुए। अब वो बहुत बड़ा वाकया है, मैं मौलाना जैसा तफसील नहीं बोल सकता, लेकिन खाली हेडलाइंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अभी ईशा की नमाज भी पढ़ना है, खाना भी खाना है, जल्दी अपने घरों को भी जाना है, सब मिला को 20 मिनट में खत्म करने का ही है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का घर इस्माइल दोनों मिल के बनाने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया कि जिब्राइल इस तमाम वेस्ट कंकरे मटेरियल को लेकर सारी दुनिया के अंदर सब जगह फेंक दो। हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बैतुल्लाह से लगे सो कंकरियां, वो बैतुल्लाह से लगे सो बालू, वो बैतुल्लाह से लगे सो जो भी गज का मटेरियल दुनिया में कहां कहां पड़े, वहां अल्लाह का घर मस्जिद बने। बोलो सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह वो मोहम्मदिया कमेटी वाले अभी दिखे जरा, यहाँ भी एक गिरे। वो हमें क्या समझे थे, खाली जुम्मा मस्जिद है, किला मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, मदीना मस्जिद है, गड़दीनी मस्जिद है, क्वर्ती मस्जिद है, यगुर मस्जिद है, यत्ता बेड़गी क्रास समझे थे हमें। वो यहाँ भी पड़े, वो जरा चश्मा आया था हमारा, कचरा आता वो नहीं दिख रहा था। अब जरा अल्लाह ताला मोहम्मदिया कमेटी को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, वो अल्लाह का घर का जो कंकर यहाँ गिरे, वो कहाँ गिरे मालूम नहीं है, लेकिन वटे मोहल्ले में गिरे। वो ईद के पास गिरे, क्या ये ईद के पास गिरे, क्या यहाँ बसवेश्वर सर्कल करने गिरे, क्या शिवाजी सर्कल करने, कहाँ गिरे वट मालूम नहीं, वट वो गिरे। इंशाअल्लाह सब जने नियत से जोर से बोलो, इंशाअल्लाह हम जरूर मोहम्मदिया कमेटी का साथ देकर यहाँ पर एक अल्लाह का घर मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो जोर से बताओ इंशाअल्लाह। जी अल्लाह ताला तुम्हारी हिम्मत को कबूल फरमाए। तो माशाअल्लाह अभी हमारे सामने मोइनुद्दीन तहसीलदार साहब, उन्होंने मुझे बोले मौलाना ये मस्जिद बनाने के वास्ते, जगह के वास्ते मेरे तरफ से 1 लाख रुपए देता हूं। बोले अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मोइनुद्दीन तहसीलदार साहब को अल्लाह हज की भी तौफीक अता फरमाए, उम्रे की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला 1 लाख रुपए देकर ये मस्जिद की जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनकी हिम्मत को कबूल फरमाए। बोलो आमीन। अब इनके सरकार कौन दुआ लेना चाहती जरा बोलो, 1-2 मिनट जरा बोलो, उसके बाद मैं ये हाजिया की सब गुलफोशी करेंगे, उसके बाद दुआ करने छोड़ेंगे। बोलो कौन कौन करेंगे, नियत करो, खाली नियत करो अल्लाह का घर बनाने। देखो अल्लाह के घर के वास्ते हमें दिए, जन्नत में कौन कौन अपना घर बनाना चाहती, जरा हाथ उठाओ। जन्नत में अपना घर होना क्या नको, हाथ उठाओ भाई। जन्नत में नहीं जाते तुम्हें, कौन जाना चाहती है, उन्हें हाथ उठाओ। अब जन्नत में जो जाना चाहती, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मम बना मसाजिद, हाँ मुझे कुरान में हाफिज तो नहीं हूं, मौलाना बोल रहे, हदीस है हदीस। जो आदमी, जो मुसलमान दुनिया में अल्लाह का घर बनाते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में भी एक घर बनाते हैं। तो आप नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अब कौन कौन करेंगे जरा ऐसा कैसा बोले, कौन भी 2 लाख देते हो तो भी हमें नाराज नहीं होते। अभी तुम्हें उधार लिखाओ, नकद नको, उधार अभी खाली ये लिस्ट में नाम रहने दे। कौन कौन कोशिश करते बोलो जी, क्या नाम, यूसुफ बड़ोती, कितना जी, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है, और बोलो जी, नामा लिखो जी जरा, सब जने बैठे साले हर एकला नियत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे मस्जिद अल्लाह के घर के लिए हमें हमारी तरफ से 1 लाख रुपए इंशाअल्लाह हमें भी जमा देते इंशाअल्लाह जी। बोलो और जरा बोलो, और आप लोग नियत तो करो, कम से कम तुम्हें तुम्हारी तरफ से नहीं हो सकता तो कम से कम दूसरा को, तुम्हारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को। देखो मालदार आदमी की 3 अलामत, दे दे, दिला दे, देने वाले का घर दिखा दे। कहते तुम्हें दो नहीं तो दिलाओ, नहीं देने वाला का एड्रेस बोलो, हमें आग बाबा करती वहां जी। 5,000 रुपए देखो माशाअल्लाह हमारे इमाम हुसैन मुल्ला साहब, अल्लाह ताला 5,000 रुपए दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनें से भी गुजारिश है हमारी कि आप भी जरा नियत कर लें, नियत करके आप भी ये अल्लाह के घर को बनाने के लिए मोहम्मदिया कमेटी वालों को साथ देने की फिक्र करें जी। तो सब कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह जी। जरा और एक जरा बोलो तो इंशाअल्लाह
हाँ, सुक्का इंशाल्लाह बोल रही है। एक आदमी बिरयानी रख सामने रख ले कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह का तो पेट नहीं भरता उसका। जी, कुछ नियत तो करो आप लोग, कुछ कोशिश करो जी। मोहम्मदिया कमेटी के मेंबरा भी बोलो तो, खाली लोगांग बोले, तुम्हें भी बोलना तो हाँ बड़े मंदी तैयार ಮಾಡೋದಾ ನೀವು तैयार ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ जी। क्या नाम बोलो, क्या नाम? साथ नहीं, मुझे फिगर बोलो यहाँ। वो 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, 1,000 होंगे, क्या भी होंगे, नियत करो। हाँ, सब मेंबरों को 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। कितने मेंबर आए तुम्हें? 16 मेंबर। 16 इंटू 5 मारो, कितना होता? 80,000। शुद्ध 1 लाख रुपए कर छोड़ो तुम्हें, ठीक है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। और जरा बोलो, अभी 1-2 लाख बोले, 5 लाख में जगह मिलेगा क्या? नहीं मिलता। मिल सकता है क्या? कहा भी हमें देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटे जगह देखेंगे, हमना क्या एंट्री चुना कर को क्या जरूरी नहीं, बाद में देखना। हमारे जाफर सुतार साहब 10,000 रुपए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाल्लाह हमारे साथ उम्रे को आए थे जाफर सुतार साहब, उनकी घरवाली भी बहुत अच्छी खिदमत की माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बोलो जी। अमीन साहब तहसीलदार 10,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरम। अमीन तो बोलो, अमीन कर बोले तो कहा हमारे 10,000 1 लाख रुपए जाती कर डर रही, नको डरो। तुम्हें नहीं दिया तो भी अल्लाह दूसरा की तरफ से देने लगाता। तुम्हें खाली दुआ हमें बोलने के बाद अमीन कर को बोलो जी। और बताओ क्या नाम है? हुसैन साहब बोलो थी कितना, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जरा तुम्हारा स्टार्टर देर से उड़ता है यहाँ जी, रन दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, रन दे। बुड्ढा साहब बोलो थी 10,000 रुपए। इंशाअल्लाह हमारे साथ 7 उलमा थे, जिसमें कारी अब्दुल मुनाफ काजी थे, हाफिज अब्दुल हमीद जमखंडी थे, कारी मोहसिन थे, मौलाना अब्दुल वहाब साहब। हमारा सफर ऐसा था, ऐसा लगता है बेटा अल्लाह हमारी नीयत है। मोहम्मद मीटी के मोहल्ले में हमारे डोगरी भाई बोले सर का तुम्हें उम्रे की भी नियत करो, अल्लाह के रास्ते में जाने की भी नियत करो। और आज से हमारे इलाके बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब पूरे ताल्लुक है कि आप हमारे जमीयत उलमा के सदर हैं, पूरे बागलकोट जिले के राब्ते मदारिस के आप सदर हैं। तुम्हारे मोहल्ले में मकतब का निज़ाम, मदरसे का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, उम्रे का निज़ाम, हज का निज़ाम, मदरसा मस्जिद बनाने का निज़ाम, जो भी काम करना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है हमारे इलाके में एक जामिया दावतुल हक एजुकेशन ट्रस्ट एक मदरसा है, उस मदरसे के अंदर आप ज़रूर आए। इंशाअल्लाह तुमने क्या होना, कुरान और हदीस की रोशनी में पूरे बेड़गी में नहीं, बागलकोट जिला नहीं, कर्नाटक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तुमने क्या खिदमत कराना और तुम्हारी क्या खिदमत करके तुम्हारे मोहम्मदिया कमेटी को ऊंचा बनाना। तुम्हें मुस्तकिल हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की हमें निगरानी में चल रही, तुम्हारे से भी हमारी गुजारिश है हजरत मौलाना की निगरानी में तुम्हें चलो। इंशाअल्लाह तुम्हारा दीनी तौर पर भी काम अच्छा होता और तुम्हारे कमेटी के जो रूल्स रेगुलेशन जो बैला है वो हमें जो भी काम करना है, आज हमें कांग्रेस के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, ये जितने भी हमें काम हुई ये सब हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की दुआओं की और उनकी निगरानी की बरकत है। मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करता हूं आप हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब हमारे उलमाए कराम के मशवरे से काम करने की फिक्र करो। आखिर में तमाम मेहमानों का यहाँ पर जितने भी लोग आए खास करके और एक मर्तबा मोहम्मदिया इस्लामिक कमेटी वालों का इनकी तरफ से जो मूल वर्ष तीसरे वार्षिक 3 साल के मुकम्मल होने के बाद माशाअल्लाह उमरा यात्री गए उनको गुलफोशी करे। मैं कमेटी के चेयरमैन साहब अली जनाब हुसैन बलोती साहब, अब्दुल साहब जमखंडी और मंसूर साहब काले बाबा गोड़ और इनकी पूरी मोहम्मदिया कमेटी वालों का, इस मोहल्ले वालों का, यहाँ के बड़ों का, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारी पर्दा नशीर माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, आप लोगों का भी हम मोहम्मदिया कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं आखिर में हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूं आप दुआ कर लें। दुआ के बाद तमाम हजरात जो है मस्तूरात अपने अपने घरों में जाके नमाज पढ़े। जो मर्द हजरात हैं आपका अगर वजू है तो सब लोग वजू करके इंशाअल्लाह यहाँ हमारे मोहम्मद रफीक उमर साहब काजी मुन्ना काजी के घर में इंशाअल्लाह हम लोग जमात बना के नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खाना खा को आराम से अपने अपने घरों को जाएंगे। सब इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना से गुजारिश है दुआ करने। हमारी इज्जत बढ़ाए, अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी तुम्हारी इज्जत भी बढ़ाना, तुम्हारे लिए भी जरा गुलफोशी करना, दुआ करना। तो सबसे पहले मैं हुसैन साहब बलोती और हमारे अब्दुल साहब
जमखंडी और मंसूर साहब काले बाबा गोल, ये तीनों जने से हमारी गुजारिश है, तुम्हें तीनों जने का सर ये 3 कुर्चा मैं रिजर्व रखो है, मैं ठहरता हूँ, तुम्हें तीनों जने आको बैठो, हमें सब जने मिला को इंशाल्लाह तुम्हारी गुलपोशी करते हैं। एक मरतबा तीनों हजरात के असर, पूरी कमेटी के असर जोरदार तालियां बजा के छोड़ो। अल्लाह कबूल करो। क्या काय सेक्रेटरी जरा हमारे अब्दुल मुनाफ शोलापुर सर चेयरमैन साहब मौलाना, तुम्हें जरा इनको डाले तो अच्छा है। आओ सर, तुम्हें आओ सर प्लीज। अब्दुल मुनाफ शोलापुर सर दो यहाँ इधर ठहरो मौलाना, जरा चुना दी पहला बैठी ठहरो, नहीं ठहरो यहाँ बैठो, बैठो। माशाल्लाह हमारे हुसैन बलोती साहब, हमारे अब्दुल जमखंडी साहब, हमारे मंसूर काले बाबा गोल, हमें ये तीनों जने कितना जने यहाँ बैठे सलांगी भी करने का दिल है, लेकिन इन्हों जरा ये मकाम तुम्हारे से भी हमारे से भी ज्यादा काम करने में ज्यादा है। जो काम करे बेटा उनको वो इज्जत है और वो रुतबा, वो ये चीज देना जरूरी है। अल्लाह ताला इनके जैसा हमें जितने लोग यहाँ बैठी वो कमेटी के अंदर तुम्हें भी खिदमत करे तो इंशाल्लाह तुमना भी यहाँ बिला को सब लोगों के अंदर ऐसी इज्जत मिलती। तुम्हें भी सब जने नियत करो कि इंशाल्लाह हम मोहम्मदिया कमेटी का साथ देखो, हमें भी इनसे भी ज्यादा आगे बढ़को, ये अल्लाह का घर बनाने के असर सब जने साथ देखो काम करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा। ठीक है चेयरमैन साहब बैठो, तुम यहाँ बैठ, छोड़ो बैठो, रहने दे जाओ। क्या बोलती बोलो, क्यों बोलती बोलो। हाँ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व रिज़्क़न वासिआ व क़ल्बन खाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन मग़फ़िरतन बादल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ु बिल जन्ना वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या हन्नान या मन्नान या बदिउस समावाति वल अर्ज़ रब्बी ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार हम गुनहगार आजिज़ बंदे आपके दरबार में हाथ उठाए हैं, अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुजर फरमा, कसूरों को माफ़ फरमा। अल्लाह आप बेहतर जानते हैं ज़िंदगी का अक्सर वक्त अल्लाह आपकी और आपके नबी की नाफरमानी में हमारा गुजरा है, हमारा रुआ रुआ गुनाह में डूबा हुआ है। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से आसमान भी थरा रहा है, ज़मीन भी कांप रही है, दरियाओं का पानी भी खरा हो चुका है, दरख्तों में फूल फलाने के बजाय कांटे आ चुके हैं। अल्लाह ज़मीन बंजर हो चुकी है। अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि हमारा घर ज़रूर बड़ा है मगर सुकून का नाम नहीं, बच्चे हैं फरमाबरदार नहीं, 2-4 भाई और बहनें हैं आपस में दिल फटे हुए हैं। अल्लाह हजारों किस्म की मुसीबत, परेशानी, बीमारी, हालात और आलाम में हम सब घिरे हुए हैं। अल्लाह जी ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ये सब हमारी नाफरमानी का नतीजा है। अल्लाह हमारी आंख भी गंदी है, हमारी जबान भी गंदे हैं, हमारे कान भी गंदे हैं, हमारा दिल और दिमाग भी गंदा है, हमारा घर भी गंदा है, हमारा बिस्तर भी गंदा है, हमारा महल्ले भी गंदे हैं। अल्लाह हम गंदगी में लथपथ हो चुके हैं। परवरदिगार अल्लाह अल्लाह आप ही हमें पाक फरमा दीजिए। आज आपके दरबार में सारे बंदे बड़ी फिक्रों के साथ तेरे दीन की बात सुनने, तेरे और तेरे नबी के दर से वापस आने वालों को गुलपोशी करके दुआ लेना के लिए हाथ उठाए हैं। अये रब्बी करीम हम सबको पाक फरमा दीजिए, हम सबको साफ फरमा दीजिए, हम सबको एक और नेक बना दीजिए, हमारे दिलों को पाक और साफ फरमा दीजिए। जब तक जिंदा रहे अल्लाह इस्लाम पर, दीन पर बाकी रहने के फैसले फरमा। अल्लाह अल्लाह मौत आए तो तेरे दीन और इस्लाम पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा। रब्बी करीम मोहम्मदिया कमेटी की कुर्बानियों को कबूल फरमा, मेहनतों को कबूल फरमा, इनमें इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा, मोहब्बत नसीब फरमा, एक दूसरे के जज्बे
ان کو نصیب فرما، ہر قسم کے بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اللہ رب کریم جس مقصد عظیم کے لیے سارا مجموعہ جڑا ہے، ایک ایسے نیک لوگوں کے درمیان میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ تیرا گھر تیرے نبی کے در کی زیارت سے واپس ہوئے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج یہ سارا مجموعہ آپ سے بھیک مانگتا ہے رب کریم، ہمارے گھر میں پانی آ گیا، ہمارے گھر میں شکر آ گئی، ہمارے گھر میں تیل آ گیا، ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن اے سی آ گئی، ہر قسم کی نعمتیں پہنچ گئی۔ اللہ ہدایت بھی پہنچا دیجئے، اللہ ہدایت بھی پہنچا دیجئے۔ اس محلے کے ہر فرد کو، بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، عورتوں کو اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو تو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے کچھ مال و دولت دے رکھا ہے تو زکوٰۃ صدقات غریبوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ سارا مجموعہ آج آپ سے بھیک مانگتا ہے، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اور ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تیرا گھر اور تیرے نبی کا در بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو جا کر آئے ہیں اللہ ان کو عمرے کو قبول فرما، اللہ ان کے عمرے کو منظور و مقبول فرما، اللہ موت تک حاجی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ ہمارا سفر آخری سفر نہ بنا دیجیے، اللہ بار بار آپ کے گھر آنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بہنوں نے، عزیزوں نے، ساتھیوں نے، شاگردوں نے، رشتہ داروں نے اللہ بڑے درد کے ساتھ ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اس کی امید ہم سے رکھتے ہیں، اللہ سب کے جائز تمنا کو پورا فرما، مشکلوں کو آسان فرما، خصوصی طور پر ملک بھارت کے اندر امن، سکون، چین، برکت کو لوٹا دیجئے۔ اللہ ہزاروں سال سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اللہ سب پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ ہندو بھائی بھی آدم کے اولاد ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے بندے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، ان کی زندگی میں سکون، چین، برکتیں نصیب فرما۔ اس ملک کے بھارت سے نفرت کو ختم فرما، دشمنی و عداوت کو ختم فرما، پیار محبت کی زندگی گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل سے، اپنے دریا رحمت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فضل تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا سندنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔